India is an independent initiative designed to bring out into public domain stories of good governance by bureaucrats across India. We constantly endeavor to be the first source of credible information as far as good practices by Indian bureaucracy is concerned. With the same intentions, we started this Bureaucrats India Dialogue series to get insights into wonderful work being done by Indian bureaucrats. Today, we have with us a very young, dynamic, compassionate, and humble Indian Postal Service officer, Aarti Verma ma'am. Welcome to BI Dialogue, ma'am. She is a 2016 batch IS Indian Postal Service officer, and during COVID-19, under her leadership, Patiala Postal Service did an exemplary job of providing essential services to people. We'll get to know more about her initiatives during this dialogue. Now I invite over Rajiv Ranjan Roy, the editor of Bureaucrats India, to take this conversation forward. Sir, over to you. Thank you so much, Shweta. Thank you so much. And Aarti ji, welcome to this BI Talk, which is dedicated to the good works which are done by the bureaucrats across the country. And as Shweta rightly pointed out, that our job and our endeavor is to take your good words, good deeds to different parts of the country. My first question to you, Aarti ji, is India Post across the country played a monumental role in delivering essential services to the people during Corona pandemic-induced lockdown. Your team also did a fantastic job, Patiala, which is now only referred to as the Patiala model of providing, rising to the occasion. Please share that story with us. First of all, I would like to thank Bureaucrats India for inviting me on this forum. And via this forum, I would like to tell everybody that Patiala में like बहुत ही unprecedented time था. Suddenly we came to know like lockdown हो गया and all. But at that point of time, the entire staff, everybody, I would say, it's not just me who tried to rise to the occasion. It's the entire team, Patiala Postal Division. Who rose to the occasion and सभी लोगों को चीज के मोटिवेट भी किया गया, सभी लोगों के सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं, जो भी हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे उस टाइम पे कि वी नीडेड टू लाइक सैनिटाइज आवर बिल्डिंग ऑन डेली बेसिस, सैनिटाइजर्स प्रोवाइड कराना, मास्क प्रोवाइड कराना, ग्लव्स प्रोवाइड कराना, ये सारी चीजें बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर वाज माय जॉब कि दिस शुड बी विद माय स्टाफ. फर्स्ट ऑफ ऑल माय स्टाफ शुड फील सेफ एंड सिक्योर. And then after that, staff also did a tremendous job. Even in the lockdown time, essential medicines जो थे, PPP kits थे, थे. The postal staff, the postmen ensured that they were hospitals to the customers who ordered the medicine and everything. So though it was unprecedented time, we all didn't know how to act to it, but because of the team effort, we all could handle the situation of the COVID-19. Aarti ji, as we know that people now, most of us do agree that this lockdown, which was imposed in the of the Corona pandemic, was unprecedented in more ways than one, because it happened globally. Earlier, we used to see such lockdowns taking place in some parts of one country or the other country, something like this. And it caught the whole world unprepared, because nobody had ever thought of happening such things under any circumstances. How did you visualize the magnitude of the challenge, and how did you manage to rise to the occasion? Because it's not only you, me, or anybody else. Nobody was literally prepared for this. Even the government was not prepared for this kind of situation. But the way you responded to the situation, your team, your staff people, that was really appreciated. How did that happen? I would also like to admit that we were also not prepared, because this was for the first time we have seen this situation, and my generation also for the first time they have seen something like lockdown. But I think because मैं already वहाँ 1 साल से काम कर रही थी और वहाँ पे already टीम बिल्ड हो गई थी, स्टाफ के साथ में वो रिलेशंस थे कि एक कॉल करने पर भी काम हो जा रहा था. वो एक फर्स्ट टाइम था जब मैंने ऑनलाइन मीटिंग्स करके स्टाफ को मोटिवेट किया, क्योंकि भी स्टाफ गैदर नहीं कर सकते थे. उस तरह की जो हम ट्रेडिशनल वे में मीटिंग्स करते, वो ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं थी.
तो उस टाइम पे ऑनलाइन मीटिंग्स का सहारा लेके स्मॉल ग्रुप में ऑनलाइन मीटिंग्स करके पूरे स्टाफ की बातों को भी सुना गया कि उनके क्या एप्रीहेंशंस हैं, उनके क्या फियर्स हैं, क्योंकि उस टाइम पर सभी लोग बहुत क्रिटिकल मोड में थे, किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया जाए। तो आई वुड से कि टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा हुआ करके स्टाफ की भी के जो फियर्स थे, एप्रीहेंशंस थे, उनको भी सुना गया, उनको मोटिवेट किया गया और उनके सजेशंस भी और उनका फीडबैक भी लिया गया कि किस तरह से हम जो हमारी सप्लाई चेन है, जो डिलीवरी मैकेनिज्म this, the fear of death was so strong among the people across the spectrum. It must be a difficult task. How did you manage? मुझे लगता है कि इसमें क्योंकि जो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सभी डाक से सेवा की भावना के साथ शुरू से काम करते आए हैं, तो एक सब में थी। और जो हमारा पोस्टल स्टाफ है, स्पेशली जो पोस्टमैन स्टाफ है, वो एक बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन माना जाता है। तो मुझे लगता है कि इस फैक्टर ने काफी बड़ा रोल प्ले किया। टीम अच्छी बनी हुई थी वहां पर पटियाला में। स्टाफ की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैंने सबसे पहले इंश्योर करी कि उनके पास में सारे जो भी हमारे कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स थे उसके हिसाब से हर एक चीज अवेलेबल होनी चाहिए। तो वी मेड आवर बेस्ट एफर्ट्स कि लाइक ऑल द प्रीमाइसेस जो भी थे हमारे वहां पे थर्मल स्कैनर्स हो, वहां पर मतलब सोशल डिस्टेंसिंग properly follow की जाए, because first we need all the safety security measures in place, then only a customer would feel confident, at the same time our own staff will feel confident कि हाँ जब इतना safe environment है तो उसमें हम जाकर अपना काम कर भी सकते हैं, काम करवा भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो ये चीज मेंटेन करी, एट द सेम टाइम वी केप्ट ऑन टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द स्टाफ एज वेल। ऐसा नहीं था कि इट वाज समथिंग वन वे कि वी वर जस्ट ऑर्डरिंग द स्टाफ कि आपको ऐसा करना ही है। वी केप्ट ऑन टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम देम, वी केप्ट ऑन लिसनिंग टू जो भी उनके फियर्स थे और जो भी हमारे लेवल पे बेस्ट पॉसिबल था बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर उनको हेल्प आउट कर पाना। वी ट्राइड आवर बेस्ट। What was the people's reaction जब आपने लोगों को रीच आउट करना शुरू किया, kind of help, suggestions, advisories, etc. So, would you like to share some of your experiences, good or bad experience? है ना कि जैसे एक इंटरव्यू में एक IRS ऑफिसर जब ने सैनिटरी नैपकिन्स देना शुरू किया तो देयर वाज ए काइंड ऑफ रिवोल्ट कि खाने के साथ आप ये क्या दे रहे हैं। So it took her a lot of she had to make a lot of efforts to convince the people कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, something like this, and there were other challenges also, etc. क्योंकि उस समय तो सबों को डर लगता था, तो ये बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा आपकी और आपकी टीम के लिए। Would you like to share some of those stories, anecdotes जो कि लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा? जी जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि जैसे जो भी कस्टमर है उन्हीं का पार्सल आया है, बट उस टाइम पे हर कोई यही था कि भाई कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे लोगों ने भी बास्केट्स रखना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो स्टार्टेड अ प्लेस वेयर अ पोस्टमैन कैन गो पार्सल फॉर देम। बट स्टार्टिंग में सबको बहुत ये था कि हम कैसे आपसे ये पार्सल भी ले सकते हैं, मतलब इस तरह के भी बहुत सारे एप्रीहेंशन थे और पोस्टमैन स्टाफ ने भी एप्रीहेंशन शेयर किया था कि मैम तो इस तरीके का भी हमें महसूस होता है। तो we started telling them कि you just tell them कि हम हर एक लेवल पे सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, हमारा जो स्टाफ है वो भी मास्क यूज कर रहा है, ग्लव पहन कर आ रहा है। जो हमारा पोस्टमैन स्टाफ है, हमने हर एक स्टाफ को
सैनिटाइजर की बॉटल्स अलग से प्रोवाइड कराई थी। तो जब इस तरह की चीजें कस्टमर्स को भी बताना शुरू किया तो धीरे धीरे कि हाँ ठीक है, ये सप्लाई चेन मैकेनिज्म जो था वो सारा ऊपर हो गया था। तो बहुत सारे लोगों की जो जरूरत की दवाइयां थी उन सबको पोस्टल डिपार्टमेंट ने ही डिलीवर करवाया। तो उसका भी बहुत सारे लोगों का अप्रिसिएशन मिला। किसी के फादर की कैंसर की भी दवाई थी, किसी की ब्लड शुगर की दवाई है, सबकी बहुत अलग अलग तरह की एसेंशियल मेडिसिन जो नॉर्मल टाइम में उनको मिल जाया करती थी, बट ड्यू टू लॉकडाउन एवरीबडी वाज लाइक कि अब दवाइयां हमें कैसे मिलेंगी। लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट ने ऐसे लॉकडाउन के टाइम में भी पटियाला पोस्टल डिवीजन ने अपना बेस्ट ट्राई किया कि सबको उनकी दवाइयां और इस तरह की जो एसेंशियल चीजें हैं वो उनको मिल सके। इनफैक्ट काफी मुझे अभी भी याद है कि एक वहां पे एक DIG थे सर, अनिल कुमार सर। उन्होंने जब ऐसे पर्टिकुलर टाइम में हमने डिलीवरी कराई थी उनके घर पे, तो उन्होंने कहा पोस्टमैन को रोके कि नहीं, मुझे एक सेल्फ वीडियो बनाना है और मुझे पटियाला पोस्टल डिवीजन को थैंक यू बोलना है कि आप इतने मुश्किल समय में भी डिलीवरी इंश्योर कर रहे हो। तो जब इस तरह से कोई भी एक सिंपल वर्ड भी बोलता है तो हम लोग कुछ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं। Question? Yes. Ma'am, Shweta. yes, it is said that a postman's bag is always very heavy because they carry the life itself in their bags. How the postal services is still in sync with the changing times, because with the introduction of technology and emails and all the systems that we have in place right now, how has postal service evolved over years to still be a very essential part of delivery mechanism in India? तो अभी की बात चल रही थी तो उसमें मैं एक और एनेक्डोट ऐड ऑन करना चाहूंगी जिससे आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ, हाउ इट इज स्टिल रेलेवेंट। तो टेक्नोलॉजी, हर को लगे टेक्नोलॉजी आने से पोस्टल डिपार्टमेंट का काम कम हो गया है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्सल बिजनेस बढ़ा है बहुत सारा, प्लस एट द सेम टाइम क्या है, पोस्टल डिपार्टमेंट ने टेक्नोलॉजी को ही अडॉप्ट कर लिया है। तो अब हमारे जो पोस्टमैन है उनके पास में भी मोबाइल फोन है, वो उस मोबाइल फोन के जरिए डिलीवरी इंश्योर करते हैं। उसी सेम मोबाइल के थ्रू एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं AETS, आधार पेमेंट। तो आपके बैंक में अकाउंट है जो कि अगर आपके आधार से लिंक्ड है, आप अपना सिर्फ आधार नंबर और मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराकर 10,000 रुपीज तक का कैश आप घर बैठे विड्रॉल कर सकते हो। तो जब ये अपना लॉकडाउन वाला पीरियड था जिस टाइम पे बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे थे जो अपनी पेंशन लेने के लिए नहीं जा सकते थे, बहुत सारे बीमार लोग ऐसे थे जो नहीं जा सकते थे कहीं पे भी, तो पोस्टमैन ने उनके घर पे पहुंचकर उनको ये कैश की राशि दी है। तो आप देखिए कि ऐसे टाइम पे जब कोई भी घर से बाहर निकल के नहीं जा सकता है, ATM यूज करना इट वाज क्वाइट रिस्की। घर से निकलना ही इतना रिस्की था, उसके बाद में कैश की भी रिक्वायरमेंट तो थी ही। तो उस टाइम घर बैठे लोगों की पेंशन प्रोवाइड कराना, लोगों की कोई भी DBT ट्रांसफर जो होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसके थ्रू अगर कोई भी उनका ड्यू आ रहा है सरकार की तरफ से, वो सब पोस्टमैन ने घर बैठे प्रोवाइड कराया। तो आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजी को ही साथ में लेकर और एक तरह से डोर स्टेप बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करके जो हमारा पोस्टमैन है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, दे all became very, very important time. Ma'am, was it difficult to get was it difficult to get your staff aligned with the changing technology, because mostly staff are old, so was it difficult to get them understand the whole technological functions? I would say कि like Patiala Postal Division में जो मेरा staff था, it has been a quite a mixture. We had like younger lot, middle age lot, at the same time little bit elderly lot also. But I think with the help of lots of hands-on training, it was possible to make them trained in adopting the technology. And I've seen many times that the younger lots was teaching the elderly staff, sir, aise kar lijiye, and they also used to ask them
तो आई थिंक हम लोगों ने हमेशा इस चीज को इंश्योर किया कि ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक एक बार ट्रेन कर दिया, एक बार phone दे दिया and then no. At least once a month training, which used to be a kind of because in a month they also had their own queries and their own doubts also. So to our system managers, we used to resolve their doubts, and at the same time we used to get them again and again trained, so that they should also feel that department is giving them a hand holding. It's not like we have just left them to their own like. So that's how we were able to manage it. Aarti ji, India Post because has been very close to people's life in more ways than one. आज टेलीफोन आ गया तो लोग बात कर लेते हैं. Otherwise people used to wait for the डाकियास. और डाकिया जब गांव में आता था तो लोग दौड़ते थे. I still remember as a child, when the postman used to come to our place, तो हम लोग जाते थे कि किसकी किसी चिट्ठियां आई हैं. जितने आते थे फिर लेते थे. अगर कुछ में चिट्ठी नहीं कुछ और चीजें हैं तो we used to get disappointed कि मैगजीन आ गया, ये आ गया. We didn't get any letter from near and dear ones, जो नॉर्मल होता था. तो that was entirely a different kind of experience which we are missing today. In fact, उसके बाद का जो जनरेशन है, they have been deprived of this great experience. कि वो उसमें जो एक हैप्पीनेस आता था और बड़ी खुशी होती थी. पोस्ट कार्ड भी आ जाता था. पोस्ट कार्ड आते थे. नॉर्मली आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, मैं हॉस्टल में रहता था तो माय डैड यूज्ड टू राइट मी पोस्ट कार्ड. 4-5 लाइन का जाता था. हम पढ़ते थे, संभाल करके रखते थे. समथिंग वी यूज्ड टू प्रिजर्व. In fact, still, we have some of the letters which our father wrote to his father, our grandfather, as a student from his hostel. That experience, that people have been, this generation has been defined now. And there are many good things has been doing for many years, but the people are not aware of those best practices. उनको लगता है कि ठीक है, ये ऑर्डिनरी लेटर है तो ये कहीं डाल के चले जाते हैं. स्पीड पोस्ट है तो रिसीव करा देंगे और बाकी ये कुछ करते नहीं है. थोड़ा बहुत शहर लोग में जानकारी है. I think that which is not fair, because I personally feel that India Post is doing a whole lot of things. So what are those things you would like to share about your department with the audience through this dialogue? मैं खैर इसी माध्यम से सबको कहना चाहूंगी, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, that AEPS, that is आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये एक ऐसा तरीका है कि आप घर बैठे अपना कैश निकलवा सकते हो. एंड आई नो कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है. तो ये एक ऐसा सिटीजन सेंट्रिक, मैं कहना चाहूंगी, एक कदम है डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसके बारे में मैं सबको जानकारी देना चाहूंगी. उसके अलावा अभी बहुत सारे मोस्टली पोस्ट ऑफिसेज में बहुत सारी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज आ गई, जैसे कि आधार जो है वो आप अपना आधार बनवा सकते हो, आधार में चेंजेस करा सकते हो आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर, जो कि एक बहुत बड़ी सुविधा है. इनफैक्ट पटियाला पोस्टल डिवीजन, तो मैं प्री कोविड टाइम्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि प्री कोविड टाइम्स में हम लोगों को एक जगह पे इकट्ठा भी कर सकते, दैट वाज पॉसिबल, बट कोविड में अभी ये पॉसिबल नहीं है. उस टाइम पे हम लोग बहुत सारे स्कूल्स में जाके कैंप करते थे, जहाँ पे कि ताकि जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें अपना स्कूल भी मिस ना करना पड़े, और उनके आधार में जो भी चेंजेस करवाने हैं या कुछ आधार बनवाना है, जैसे था कि बाल बनवाना से उन्हें अपना फिर चेंज कराना होता था जब वो बड़े हो जाते हैं, तो वो वाली फैसिलिटी वी यूज्ड टू प्रोवाइड एट द डोर स्टेप स्कूल्स में जाके. इनफैक्ट बहुत सारे विलेजेस में जाकर, पटियाला के हमने विलेजेस में जाकर वहीं पे कैंप लगा के गांव वालों के लिए आधार की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई थी, ताकि, क्योंकि गांव वालों को बहुत सारा एक पैसा खर्च करके शहर आना पड़ता है उन्हें अपना जो भी आधार कार्ड बनवाना हो या कोई और भी, अगर उन्हें कोई भी सिटीजन सेंट्रिक अगर सर्विस लेनी है, तो वी इंश्योर्ड कि उनको उनके डोर स्टेप पर ही ये सर्विसेज प्रोवाइड. तो जैसे मैंने बताया, आधार बनवाना, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अब पासपोर्ट सेवा केंद्र भी पोस्ट ऑफिस में खुल गए हैं. तो जो पहले कैपिटल में जाकर ही बनवाना होता था, जैसे मैं वही पटियाला का एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे पहले चंडीगढ़ जाकर बनवाना पड़ता था पासपोर्ट, तो अब वो पटियाला में पॉसिबल था बनवाना, जो पटियाला के जो लोग थे उनके लिए. तो ये बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इतना सारा टाइम प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन में जो एक फेयर खर्च होता है वो सेव हो गया. और अभी रिसेंटली ही जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं उनकी जो फैसिलिटीज होती है, जैसे कि पैन कार्ड बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, जो भी इस तरह की
सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज है वो भी कुछ सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस में आ गई है और धीरे धीरे काफी सारे पोस्ट ऑफिस की तरफ वो एक्सटेंड हो रही है। तो डाक सेवा जिसके लिए हम कहते हैं कि डाक सेवा जन सेवा, तो बहुत ही कोशिश रही है और इसी तरह से कोशिश चलती जा रही है लगातार कि किस तरह से आप अगर एक पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो आप अपनी एक विजिट में अपनी कई सारे जो रोजमर्रा के बहुत जरूरी काम होते हैं जैसे कि आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, वो भी आप वहां जाकर बनवा सकते हैं और आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। Ma'am, during your time at Patiala Post Office, you did some wonderful job like waste segregation, which was commended by central government as well. Tell us about few such initiatives that you took there. मैं कहना चाहूंगी कि मुझे तो इस चीज का कि वेस्ट जो है उसका हमेशा होना चाहिए और मैं सही जाकर ही मुझे धीरे धीरे अवेयरनेस हुई कि किस तरह से हम वेस्ट का एक प्रॉपर सेग्रीगेशन कर सकते हैं, किस तरह से कॉर्पोरेशन भी हमें हेल्प कर सकता है इन सब चीजों को करने में। तो स्टाफ की अगेन बहुत सारी मीटिंग्स करके हम लोगों ने ये इंश्योर किया कि सबसे पहले हर एक पोस्ट ऑफिस में हमारे 2 डस्टबिन हो, वेट वेस्ट के लिए अलग है, ड्राई वेस्ट के लिए अलग, और फिर उसके बाद में सबको इस चीज के लिए सेंसिटाइज करना, अगेन एंड अगेन वर्कशॉप करके कि ये बहुत जरूरी है, बहुत मैंडेटरी है कि हम अपने प्रीमाइस को नीट क्लीन रखें। तो उसमें भी अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू माय स्टाफ, दे ऑल लिसन टू मी, दे ऑल फॉलोड इट, एंड द बिगेस्ट अप्रिसिएशन हैज बीन बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिन्होंने कि हमें पब्लिक ऑफिस कैटेगरी में स्वच्छता अवार्ड दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन था पूरे स्टाफ के लिए, पूरे पटियाला पोस्टल डिवीजन के लिए, एंड एवरीबडी फेल्ट सो इलेटेड और उन्हें लगा कि हाँ हम कुछ एफर्ट्स करते हैं तो उसका एक रिकॉग्निशन भी होता है। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसको कि स्टाफ ने भी बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया, हमें एज अ पब्लिक ऑफिस भी पटियाला में बहुत अप्रिसिएशन मिला। उसके अलावा मैं मेंशन करना चाहूंगी कि हम लोगों ने क्लीननेस के अलावा इस चीज पे बहुत ध्यान दिया कि जो भी पब्लिक ग्रीवांस आते हैं, पब्लिक कंप्लेंट्स होती है, आई यूज्ड टू पर्सनली मॉनिटर देम और एक पर्सनली मैं खुद फॉलो अप लिया करती थी। एट टाइम्स मैं बहुत कॉल्स करके भी कस्टमर से पूछा करती थी कि आई यूज्ड टू इंश्योर इट कि अगर फाइल पे आया है कि हाँ ये केस रिजॉल्व हो गया है, आई आल्सो नीड टू डू कि वेदर इन एक्चुअली इट हैज रिजॉल्व्ड और नॉट। तो इन सारी एक पर्सनल मॉनिटरिंग का ये इफेक्ट हुआ कि बिकेम क्वाइट अवेयर कि मैम पर्सनली को चेक करती है तो वी कैन नॉट फूल अराउंड द कस्टमर्स। तो उसके बाद भी एक फेज था पटियाला विजन का, तो उस पेज को चलाने का ये भी फायदा हुआ कि जब कोविड टाइम्स था तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम पब्लिक को देना चाहते थे वो हम उस फेसबुक पेज के माध्यम से दे पा रहे थे, क्योंकि कोविड टाइम्स में जब हम जानते हैं कि कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी मीडिया पब्लिसिटी वाज नॉट पॉसिबल, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म बिकेम अ वे जिसके थ्रू जनता को जो जानकारी पोस्ट ऑफिस के बारे में होनी चाहिए, इनफैक्ट जैसे जो एपीएस के बारे में जानकारी थी वो बहुत सारे क्रिएटिव्स के थ्रू हमने वहां पे रखी थी पब्लिक डोमेन में। और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी हैं ऐसे बुजुर्ग लोगों के जिनको गांव में उनके घर जाकर उनकी पेंशन मिली है। दे वर सो हैप्पी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें घर निकालनी पड़ती थी। तो these have been some of the very good experiences, and I would again and again say that my staff has been very supportive to all the initiatives. So, Arti, so far your journey in Indian Postal Service has been quite satisfying, and it seems that you are quite happy and you want to do a lot more. Yes. बिल्कुल। और मैं ये एलोकेट हुआ था कि सच में बहुत सारी चीजों का आइडिया नहीं था सर्विसेज, बट मेरा 2016 बैच है, 2 साल हमारी ट्रेनिंग होती है और 2 साल का मेरा ऑलमोस्ट फील्ड का एक्सपीरियंस है। तो इन 4 सालों में मैं कहना चाहूंगी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही सेटिस्फाइंग रहा है। आप जब किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर तक अगर उसकी पेंशन दिलवा देते हो तो वो अपने आप में एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। जब किसी के घर पे उसकी दवाइयाँ पहुंच जाती हैं वो भी एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। तो बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट होने की वजह से मुझे लगता है कि आई हैव बीन मैं आगे इस डिपार्टमेंट के थ्रू, इस डिपार्टमेंट का पार्ट बन के मैं जितनी सेवा कर पाऊँ उतना मेरे लिए काम होगा।
Arti ji, you rightly pointed out that the Indian postal service jo is very close to the people's heart. In fact, it's an integral part of people's life. We cannot think of life without availing the services of India Post. तो क्या और इसका रीच भी वाइड है. wherever you go you have the postal services, and which is you may not have the school or the college but you have the post office. ये it's everywhere. और पहाड़ के जो माउंटेनस स्टेट्स है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां तो सड़क के किनारे इतने अच्छे छोटे छोटे पोस्ट ऑफिसेस होते हैं, which I have seen in at some places in हिमाचल प्रदेश. वो भी बड़ा अच्छा लगता है. So can't we utilize India Post as a harbinger of positive changes in our country? How do you look at this possibility? जिस चीज की reach इतनी wide हो और इतना meaningful reach है, and the reach is quite reliable. It's not ordinary reach. It's a reliable reach. So I think that it can be used as a medium to bring in so many positive changes in the society. How do you look at this possibility? आई थिंक इंडिया पोस्ट ये सब चीजें करता आ रहा है ऑलरेडी. जैसे जब हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बहुत ही सुंदर अच्छे मीनिंग थ्रू आउट इंडिया सारे पोस्ट ऑफिस में वो लगवाए गए थे. आप देखिए इतनी सारी जगह, जैसा कि आपने कहा कि चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे अपना हिमाचल प्रदेश के जो हिली एरियाज के जो पोस्ट ऑफिस थे, उन सभी जगहों पे वो लगाए गए थे. और इनफैक्ट अभी जो कोविड वाला टाइम था उसमें जो हमारा मैसेज था सभी के लिए, एक जो बेसिक मैसेज था कि हमें मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है और 2 गज की दूरी बनाए रखनी है. तो इस मैसेज को भी जो जन आंदोलन अभियान है उसके तहत सारे पोस्ट ऑफिस के थ्रू इस पर्टिकुलर मैसेज को पहुंचाया गया. तो आप देखिए कि बिल्कुल सही कहा आपने कि पोस्ट ऑफिस की जो एक मीनिंगफुल रीच है उसके थ्रू किसी भी पॉजिटिव मैसेज को सब तक पहुंचाया जा सकता है. और पोस्ट ऑफिस चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, और अभी जो कोविड के टाइम में जो हमारा जो एक बेसिक मैसेज है सभी के लिए, उस मैसेज को आज भी पोस्ट ऑफिस सब तक पहुंचा रहा है. Shweta, would you like to ask anything? Ma'am, as you said, COVID मतलब post office के सारे staff का लोगों से directly deal करने का पूरा, all their activities are based on direct touch with people. So, is there any experience in particular that you would like to share which left you very emotional? Because they must thank you a lot for delivering services on door all the time. So, any experience in particular? Well, मुझे एक बुजुर्ग दंपति का मतलब there was an old couple. They were finding a lot of issue in getting their claims done. It was a very initial phase when I started working as SSPOs Patiala in the Patiala Postal Division. So it kind of left me with something like they are finding it very difficult to get their own dues. So then I thought why this is happening. So I went little deep into it and then I realized कि ऐसा नहीं कि it's like हमारा staff ही at fault है, ऐसा है कि customer at fault. It's like there is some miscommunication, there's some gap is there basically. So then we started ensuring that whenever they are, then anybody is coming for their claim, so we should provide them a checklist. These are all documents which are required in this particular format. They are required. हम लोग पर जब वो आपके पास सारे documents होंगे तो उसके बाद ठीक होगा. So these kinds of things we started doing. आपको भी again बहुत सारी trainings देके sensitize करना start किया कि why it is so important to get the claims done within the due time. Then I personally started monitoring कि अगर claims आते हैं तो उनके sanctions कितने दिनों में निकल रहे हैं, कोई time delay तो नहीं है. So I think this personal monitoring, sensitizing the staff, all these things. It started with one particular incident in which an old couple came with a complaint, but then it somehow made me realize कि हाँ systematically कहाँ पे कहाँ problem आ रही है जिसकी वजह से we were not able to deliver it. But then I was glad कि gradually चीजें पे ठीक होने लगी और timely लोगों के claim उनको मिलने लगे. So yeah, continue, ma'am. Yeah. Please continue. Yeah. So when that old couple they got their claim done, so they called up me and they thanked me. It was like if I just told them it was my duty, I just did nothing more than that. But yeah, somehow it gives you some sort of satisfaction that you have been kind of some help
to somebody. Now, grievance redressal has always been a sore point for government because people have just constant complaint कि सुनती नहीं है सरकार हमारी बात. So how can that be resolved, especially in sectors like postal services when you have to deal directly with people? So how can that sphere be resolved? जैसा कि आपने कहा कि इट इज अ सोर पॉइंट, तो मुझे लगता है कि अगर हम सुन के, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रीवांस जो होते हैं कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं, इट्स लाइक अ फीडबैक फॉर अस एज वेल, कि हमारे ही सिस्टम में या मे बी देयर इज सम गैप, सम कम्युनिकेशन गैप, समथिंग कैन बी देयर. So in Patiala Postal Division, what I used to do whenever there used to be any complaint, whether we are receiving that complaint via Twitter, via Facebook, or via a written complaint, I personally used to keep a follow-up of that particular complaint. And अगर कोई हमारा systemic issue आ रहा है, जैसे I would like to share with you some example. Like एक Twitter complaint था जिसमें उन्होंने एक गांव का वो फोटो, गांव का पोस्ट ऑफिस था वो, एंड उसका बिल्डिंग काफी अच्छी स्टेट में नहीं था. तो इट समहाउ गेव अस दिस इंफॉर्मेशन कि ओके हमारे 220 जो गांव के पोस्ट ऑफिस है उनमें से एक पोस्ट ऑफिस ऐसा है जिसका बिल्डिंग अच्छा नहीं है. तो इमीडिएटली इट गॉट माय अटेंशन एंड आई टुक इट इन अ वेरी पॉजिटिव स्पिरिट. And उस पोस्ट ऑफिस का हमारे लिए जो बेस्ट पॉसिबल रेनोवेशन था, वी गॉट इट डन. एंड देन अगेन द पर्सन हु पुट इट आवर अटेंशन टू इट, दैट पर्सन आल्सो थैंक्ड अस कि लाइक आपने इमीडिएटली उसका रेनोवेट करा दिया और उसका चेंज करा दिया और ऑल. So I think we should take the complaints in a positive light as a feedback mechanism. It's like कि हमें like first hand information मिल रही है, and whenever I used to get it, I used to like send my staff there and verify the facts also, because at times there can be false complaints also. So it's always better to personally go and verify, and I think the personal monitoring and the personal follow up of the complaints helped me to keep a tab of all these things. So I think listening and then doing a follow up, and also ensuring there should be a resolution. Two steps are very essential for having the grievance in a better manner, especially in the government sector. Yes, आरती जी, वी हैव 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स. मुझे लगता है एक का तो आपने जवाब पहले भी दे रखा है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू रिपीट द क्वेश्चन. वो सपना शर्मा जानना चाहती हैं कि कोरोना के दौरान कम्युनिकेशन में क्या-क्या बैरियर्स आते थे. दैट्स द वन क्वेश्चन. हाउ यू यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द स्टाफ के बारे में तो आपने बताया. यू आल्सो एक्सप्लेन्ड क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिवली हाउ यू यूज्ड टू इंटरैक्ट विद द पीपल, बट स्टिल इफ यू कुड ऐड सम मोर वैल्यू टू दिस क्वेश्चन, that will be appreciated. And another question is, क्या ये आस्था है वो जानना चाहते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट, कोई पार्सल लेकर के पोस्टमैन जाते थे लोगों के घर पे डिलीवरी के लिए, तो आपने उसका भी बताया कि you used to convince, your staff used to convince the people कि proper sanitation के साथ इसको किया जाता है. तो would you like to add some more, would you like to add some, throw more light on these 2 questions? जैसे मैं कहना चाहूंगी कि आई एम अ पीपल्स पर्सन. मुझे इन पर्सन मिलकर इंटरैक्ट करना, मीटिंग्स करना ज्यादा सुविधाजनक लगता है अपने लिए. लेकिन कोरोना टाइम में इट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल दैट यू कैन मीट पीपल. तो उस पर्टिकुलर टाइम पे दीज ऑनलाइन मीटिंग स्टाफ के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम वो लोग भी इस तरह के ऑनलाइन मीटिंग के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे थे. बहुत बार ऐसा होता था कि नेटवर्क कनेक्टिविटी के इश्यूज आते थे. तो लेकिन हम लोगों ने ये ट्राई किया कि चलो हम लोग स्मॉल ग्रुप्स बनाकर ही मीटिंग कर लेते हैं. अगर एक टाइम पर 50 लोग 60 लोग अगर नहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो लेट्स हैव अ मीट ऑफ 5 पीपल, 10 पीपल, स्मॉलर ग्रुप्स. एंड अगेन उन सारे ग्रुप्स में सेम बात को रिपीट करना, और कई बार लोगों के सेम क्वेश्चंस होते थे, सेम एप्रीहेंशंस होते थे, उन पे फिर से रिप्लाई करना. इट वाज लिटिल टैक्सिंग, बट आई वुड से कि कोई और तरीका नहीं था उस टाइम पे कम्युनिकेट करने का. तो technology has been helpful, and again postal employees have been very brave in adopting the technology, attending all those online meetings. तो इसने काफी हेल्प किया.
और जो एक और सेकंड क्वेश्चन था जिसमें कि पूछा गया था कि किस तरह से डिलीवरी को इंश्योर करते थे, राजीव जी एक बार और आप बता जी दीजिए जी क्या था। हाँ, वो जानना चाहते हैं कि जैसे कि कोई पार्सल डिलीवरी करने के लिए जाते होंगे तो उसको रिसीव करने के दरमियान, जैसा कि एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि लोगों में ढेर सारे अप्रिहेंशंस था व्हिच वाज क्वाइट नेचुरल बिकॉज हम लोगों को ये पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल। एक और क्वेश्चन है आरती जी, मैं आपको बता दूं, रचना जानना चाहती हैं क्या कि एनी सिचुएशन व्हिच वाज डिफिकल्ट टू हैंडल फॉर यू ड्यूरिंग कोरोना पीरियड, ऐसा भी तो कुछ पॉइंट्स आए होंगे जहां आपको लगता होगा कि अरे ये क्या हो रहा है, अब क्या किया जा सकता है, बट यू मस्ट हैव मैनेज्ड। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे भी कुछ अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, तो शी वांट्स about those ups and downs while dealing with the people during the lockdown period. एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सबसे मिल नहीं सकते, उससे आप समझा नहीं सकते, यू हैव टू डिपेंड ऑन दोज ऑनलाइन मीटिंग्स। और उसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि हो सकता है अभी क्योंकि मैं उस तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ कि हाँ ठीक है हमने इतने सारे राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ कॉन्वर्सेशन किए, तो एट टाइम्स अपने भी स्टाफ को कन्विंस करना कैन बी डिफिकल्ट, बट यू हैव टू बी जस्ट, आई थिंक सुनना होता है स्टाफ को। हम कई बार बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर ये सोचते हैं कि हमने किसी चीज का ऑर्डर कर दिया है तो इट शुड बी डन, तो वो जो एक तरीका होता है वो तरीका ना लगाकर आई ट्राइड कि नहीं यार हम लोग उनकी बात सुनते हैं, उनके सारे डाउट सुनते हैं, उनके सारे फियर सुनते हैं, तो आई थिंक उस चीज ने बहुत हेल्प किया। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जस्ट ऑर्डरिंग कि नहीं आपने ये काम कर देना है, तो उसमें फिर स्टाफ जो है वो मतलब आई डोंट नो कि लाइक फिर उस सिचुएशन में क्या हुआ होता, बट आई थिंक मीटिंग्स टॉक्स अगेन फोन पे ऑल द टाइम अवेलेबल रहना स्टाफ के लिए, क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि पासेस बनवाने होते थे स्टाफ के, वो भी एक एसेंशियल काम था जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, उनकी भी काफी हेल्प रही। ग्रेजुअली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो रियलाइज की या इट्स एन एसेंशियल सर्विस, तो पोस्टल एम्प्लॉयज जो थे अपना पोस्टल का एम्प्लॉय आईडी दिखाकर दे कुड ट्रैवल एंड दे कुड ऑल्सो रीच टू द पोस्ट ऑफिस। तो इनिशियली ये बहुत सारे हिकअप्स थे क्योंकि स्टाफ का कॉल आता था कि हमें यहाँ पर पुलिस ने रोक लिया है, मैम अब आप बताइए हम क्या करें। तो देन आई यूज्ड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन वहाँ के जो उस टाइम पे देन एसएसपी सर थे, जो एसपी थे वहाँ के, तो सबसे लाइजन करके बात करके फिर चीजें ग्रेजुअली स्मूथ हुई, बट दीज वर इनिशियल हिकअप्स कि अब कर्फ्यू है तो उसमें कैसे निकले। काफी सारे स्टाफ तो ऐसा था जो कहता था कि मैम हमें जाके पोस्ट ऑफिस खोलना है, आप बताएं हम कैसे जाएं। There were many female employees also जो कि वहाँ पे पोस्ट मास्टर्स थी, they were also a little bit worried about their safety and security also. So there were a lot of issues which were there, but I think with the team effort plus I also remained available for them, for the staff कि अगर उनको कोई भी issue हो, I know there is an escalation metrics जिसमें कि escalate करना होता है किसी मैटर को, but still अगर कुछ ऐसा issue आ रहा है जैसा कि मैंने बताया कि भाई पुलिस ने ही रोक लिया, so the staff used to give me a call कि मैम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो आई थिंक उस तरह से अवेलेबल रहना स्टाफ के लिए थोड़ा ठीक रहा कि स्टाफ आल्सो ट्रस्टेड। एक डिफिकल्ट there is a difficult question for you, and the question I think that it's really difficult, but you answered to this question quite effectively and convincingly. क्वेश्चन ये है कि आज सोशल मीडिया और मेल्स के जमाने में इंडियन पोस्टल सर्विस की क्या जरूरत है? मुझे लगता है इतना जो मैंने APS, आधार, पैन कार्ड और जो बहुत सारी जनता की अपनी जो जरूरत की सेवाएं होती है उनको बता के शायद आपके क्वेश्चन का जवाब दिया है, बट जस्ट इन केस जिनका भी सवाल है उस टाइम पे अगर मुझे नहीं सुन रहे थे तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमें ऐसा लगता है, इट्स जस्ट अ परसेप्शन कि क्योंकि हम तो व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर देते हैं और क्योंकि हम मेल भेज के डॉक्यूमेंट भी भेज देते हैं, तो फिर पोस्टल डिपार्टमेंट और क्या करता होगा। तो मुझे लगता है कि पोस्टल डिपार्टमेंट इसके अलावा भी बहुत सारे जनता से जुड़े हुए काम करता है। आपका जब भी कोई पासपोर्ट आता है, आपका पैन कार्ड आता है, अपॉइंटमेंट लेटर्स बाय पोस्ट ही आएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आज भी
लाइक टियर 2, टियर 3, टियर 4 वाले शहर हैं, जहाँ पे कि पार्सल्स की डिलीवरी जो है, अपने जो बड़े शहर हैं उनमें भी पार्सल की डिलीवरी जो है वो सब पोस्टल डिपार्टमेंट की ही थ्रू होती है। और जितना ई कॉमर्स का मार्केट बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ पार्सल्स का भी वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो पार्सल डिलीवरी एक ऐसी वो आपको पोस्टल नेटवर्क के थ्रू ही आप तक पहुंच रहा है आपका जो पार्सल है। और उसके अलावा डोर स्टेप बैंकिंग जब से स्टार्ट हुई है, तो आप घर बैठे सिंपल कैश निकालना हो, अपना बैंक का स्टेटमेंट चेक करना हो, ये सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज आपके लिए ही आपके डोर स्टेप पे पोस्टल डिपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं। Arti ji, I have a question regarding this. You rightly pointed out that India Post is doing a whole lot of activities, and you also spoke about the delivery of parcels and other things. In the recent past, we have seen that many private players have also entered into this sector, and they are also providing these identical services. Have these players increased the kind of competition in the market, or India Post continues to enjoy the dominance it used to have years back? See, I think जो रीच है उसको तो कोई भी कंपेयर करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, किसी भी प्लेयर के लिए। तो जो पर्टिकुलर रीच है और जो स्पेशली रूरल सेक्टर में जो रीच है उसको तो किसी के लिए भी अचीव कर पाना वुड बी डिफिकल्ट। सो आई वुड से कि अभी भी पोस्टल डिपार्टमेंट जो है इट्स ट्राइंग इट्स बेस्ट इन प्रोवाइडिंग ऑल द डिलीवरी सर्विसेज, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, जहाँ तक पहुंचना भी काफी लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, चाहे वो डिफिकल्ट एरियाज लाइक अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, हमारे जो आइलैंड एरियाज हैं, हिली एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट है, तो उन सभी जगहों पर आज भी किसी ना किसी का सामान पहुंच रहा है, कोई ना कोई पार्सल पहुंच रहा है और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि गुड कॉम्पिटिशन टू व्हाट whosoever is in the market. Arti, I'll have one more question and move on to Shweta for the remaining questions to put to you. But uske pehle I would like to know from you. This is my personal experience. Indian Postal Service वो उस प्रकार से यंगस्टर्स को इंस्पायर नहीं करता है आज की तारीख में कर पा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स अ वेरी गुड सर्विस, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू सर्व द कंट्री, टू सर्व द पीपल, बट वो कहीं ना कहीं लोगों में मुझे लगता है कि उतनी जानकारी नहीं है। यंगस्टर्स को अगर आप पूछते हैं तो उनको बैंकिंग, कई डिफरेंट सेक्टर्स की बात करते हैं, बट इंडियन पोस्टल सर्विस डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई पर्सनली फील दैट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पीपल एंड यू गेट लॉट quite quality job satisfaction, but कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि there is a gap। जो लोग जब प्लान करते हैं यंगस्टर्स when they plan for their career future, तो इंडियन पोस्टल सर्विस में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो उतना प्रोमिनेंटली फिगर नहीं करता है। मे बी शायद हमने खुद नहीं सोचा तो मुझे ऐसा लग रहा होगा। सो व्हाट्स द रियलिटी? यार ये तो मैं भी इस बात को जानती हूँ कि बहुत सारी हमारी सर्विसेज ऐसी हैं जिसका यूजुअली लोगों को नहीं पता होता है, बट मुझे लगता है कि लाइक धीरे धीरे, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया पर हैं, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑलमोस्ट हमारे 3 हैंडल्स चलते हैं, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी जनरेशन नेक्स्ट है वो सोशल मीडिया से भी काफी है। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे जो हमारी प्रेजेंस है और उस प्रेजेंस के थ्रू हम जो कंटेंट जनरेट कर रहे हैं हमारे ऑडियंस के लिए, उससे धीरे धीरे ग्रेजुअली आई होप कि सबके बीच में जानकारी पहुंचेगी, जो कि यूथ को नहीं पता होता है इन जनरल कि हाँ ये भी सर्विसेज हैं कि यूथ अपना पैन आधार बनवाने के लिए भी पोस्ट ऑफिस जा सकता है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके हम यूथ को यूथ की ही लैंग्वेज में, उसकी लिंगो में ये बता सकते हैं कि किस तरह से पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो सबके लिए है। मतलब एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक हर एक एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ पोस्टल डिपार्टमेंट के पास है उन्हें सर्व करने के लिए। श्वेता? मैम, as Rajiv sir rightly pointed out कि इंडियन पोस्टल सर्विस के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं, इंडियन पोस्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं है। सेम वे इंडियन पोस्टल सर्विस which is a part of UPSC exam, so you come through the same mechanism, but उसके बारे में भी लोगों को ज्यादा पता नहीं है। So tell us about that Indian Postal Service, how you get into it, what's the basic training that you get, and what is your journey ahead of recruitment. Tell us about that.
Okay, fine. So basically the UPSC examination which we give, and उसमें आप लोग जैसे अपनी preferences fill करते हो services के लिए, you fill it. So according to your rank and your marks, you get the service. तो basically आपका पहले एक foundation course होता है. तो अगर आप अपने initial phase में ही वो foundation course attend कर लेते हो, तो you usually go either two places, like A is Labasna, Missouri, or you go to MCR HRD IT Hyderabad. After that foundation course of 3.5 months, you go to Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy, which is in Ghaziabad. So there, the officer on training attends the training for 2 years, and this 2-year training is a mixture of classroom training as well as the field training. So in classroom, you get to know about the rules, regulations, the manuals of the postal department, and also you get to know about the postal products and postal services. And in the field, whatever you study there, you kind of get to see the practical things there. So during the training, the trainee becomes the postmaster also, like for a very small post office which is in the village area. You get to get the feel of it also. तो एक बहुत ही छोटे से गांव का भी आपको पोस्टमास्टर बनाया जाता है 2-3 दिन के लिए. देन सिटी एरिया में भी जो होते हैं उसका भी आप पोस्टमास्टर का एक आपका ऑन द जॉब काइंड ऑफ ट्रेनिंग होता है. फिर जो बड़े एचओज होते हैं या जीपीओज होते हैं उनमें भी यू गेट ट्रेनिंग. प्लस क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम करोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में भी यू गो एंड गेट द ट्रेनिंग. तो इस तरीके का एक मिक्सचर ऑफ कोर्सेज अलॉन्ग विद द अटैचमेंट्स टू द army attachment is there. There is also a foreign attachment is also there, where you get the exposure to how other countries and their postal operations, how they are getting done, and how they are trying to make it relevant for the public. मतलब it is always said कि in the era of technology किस तरह से पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो खुद को रेलेवेंट बना के रख रहा है. सो यू गेट टू सी द एक्सपोजर एंड यू get the exposure of the foreign places as well, कि how they are managing it. तो इस तरीके से आपका 2 साल का ट्रेनिंग होता है. उसके बाद में you get your first posting after the 2 years of a training. That's great. Arti, do you have branches in foreign countries also? We do have the post offices in foreign countries. फॉरेन कंट्रीज का तो मुझे आइडिया नहीं है. बट जो हमारा एक एक्सपीरियंस था कि बाकी सब जगह किस तरह से पोस्टल डिपार्टमेंट जो हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं. तो हम लोग का एक साउथ कोरिया का एक एक्सपोजर था जिसमें वी हैव सीन कि दिस पर्टिकुलर कंट्री इज हैंडलिंग इट वेरी वेल. एंड जैसे कहा जाता है ना कि टेक्नोलॉजी इन द वेक ऑफ टेक्नोलॉजी हाउ पोस्टल डिपार्टमेंट इज रेलेवेंट. तो साउथ कोरिया तो हैज डन दिस कि साउथ कोरिया में तो टेक्नोलॉजी को ही साथ में लेकर they were even using 3D टेक्नोलॉजी also there. तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का जवाब टेक्नोलॉजी है फिर तो शायद. That's great. एक मैं जानना चाहूंगा आरती जी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. आपने जैसे कि एक तो यूपीएससी के थ्रू इंडियन पोस्टल सर्विस में एंट्री, दैट्स एट द टॉप लेवल एंड दिस इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. लेकिन उसके जो लोअर रैंक में जो और जो एंट्रीज होते हैं वो भी लोग, उसके बारे में भी लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है, यंगस्टर्स को ज्यादा पता नहीं होता है. फॉर एग्जांपल कि आई डोंट नो बिकॉज न्यूज़पेपर इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म वेयर इंडिया पोस्ट विल एडवर्टाइज वैकेंसीज कि हमारे यहाँ ये ओपनिंग है. तो वो क्या उस किस प्रकार के वैकेंसीज होते हैं एंड हाउ द यंगस्टर्स, बिकॉज मेनी यंग पीपल आर वाचिंग दिस इंटरव्यू, how would you like to guide them to prepare themselves for Indian postal services? One UPSC, through UPSC that everybody knows. Apart from that, what are the avenues youngsters can think of and they should give thought to them also? There is some rural youth और जो कि बहुत चाहता है कि हाँ रूरल एरिया में ही सर्व करे. तो एक ग्रामीण डाक सेवक भी होते हैं जिनके की ऑनलाइन एप्लीकेशंस निकलती हैं टाइम टू टाइम, सब जगह हर एक स्टेट में अलग अलग टाइम पे निकलती हैं. तो अगर आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं और आपको लगता है कि हाँ आपको गांव में सर्व करना है, तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसमें आप ग्रामीण डाक सेवक बनकर गांव में ही सर्व कर सकते हो लोगों को. ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है. उसके अलावा कुछ पोस्टल असिस्टेंट्स होते हैं जो कि एसएससी के एग्जाम के थ्रू भी आते हैं.
तो टाइम एंड अगेन जब भी वो एग्जामिनेशन होता है उस टाइम पर दे कैन अप्लाई फॉर इट. Okay. Yes, ma'am. How did your life change? This is a question we have received. That how did your life change after joining the Indian Postal Service? मुझे लगता है मेरी लाइफ बहुत ही सेटिस्फाइंग हो गई है एंड एवरी डे आई फील ब्लेस्ड कि रोज ऐसा कुछ ना कुछ मौका मिलता है कि आई फील इट कि आज का दिन अच्छा गया, आज किसी ना किसी की हमने कोई हेल्प करी. तो आई थिंक इट हैज चेंज्ड इन अ वेरी पॉजिटिव वे. Many of our audience might not know, ma'am's journey has been an epitome of written determination from the day she started preparing. So we had a conversation earlier and her interview is on our website. She told us about how her journey was she worked so hard to get here. So when people see a person on a position, they think that it must have been easy. So they just got there. They don't understand the work that goes behind reaching to that platform. As Lionel Messi one day said that it took him 17 years, 114 days to become an overnight success. So that's a journey of many people we know. Ma'am, please tell us about how did you deal with failure when you couldn't crack UPSC the first time? How did you deal with that? And how did you keep yourself motivated? I would like to tell you, Shweta, because I have been like all the time an achiever, all the time a topper, college ho, चाहे आगे masters हो, everywhere I got like जैसे बोलते हैं ना हमेशा I have that. But even after that, in point I could not clear prelims. So it was kind of shock for me कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है. Literally मैंने ही बोला था कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है and this is not at all possible. I think मैंने अपना रोल नंबर कई बार चेक किया होगा, कई बार मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि ऐसा पॉसिबल भी है. फेलियर जैसी चीज भी मुझे देखने को मिल सकती है. But this is UPSC examination and that's how it trains you and that's how it builds a lot of patience in you and that's how it tests your determination as well. So my determination and my patience, it got tested many times and in my fourth attempt I could clear it. तो हर एक अटेम्प्ट के बाद में लगता था कि यार इस बार तो हो जाना चाहिए, लेकिन आपका जब नहीं होता है यू डेफिनेटली गो इनटू सम काइंड ऑफ डिप्रेशन, मे बी अ माइल्ड काइंड ऑफ. आई यूज्ड टू बी इन दैट फील्ड कि नहीं यार अब शायद दोबारा तो उतनी मेहनत कैसे होगी, फिर से कैसे हम जीरो से स्टार्ट करेंगे. बट आई थिंक आई हैव बीन वेरी मच ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स जो है वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे. उन्होंने कभी कभी मुझे ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारा भी एग्जाम नहीं निकल रहा तो प्लीज अब शादी कर लो और अब ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी उन लोगों ने नहीं कहा. दे ऑलवेज ऑलवेज मोटिवेटेड मी. दे ऑलवेज सेड कि इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लो. तो उनका एक सपोर्ट था. फ्रेंड्स बहुत अच्छे रहे. दे ऑल्सो केप्ट ऑन मोटिवेटिंग मी. और शायद मैंने पहले भी इंटरव्यू में वाली बात बताई थी कि मेरे पास में हरिवंश राय बच्चन की जो एक पोयम है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो मैंने अपनी जो स्टडी टेबल थी उस पे फ्रंट में ही लगा रखी थी वो पोयम. जब भी कभी भी ऐसे पॉइंट्स आते थे कि लगता था कि अब और मेहनत नहीं हो सकती या अब और एफर्ट्स नहीं दिए जा सकते, आई जस्ट यूज टू रीड दैट पोयम एंड आई यूज टू टेल माई सेल्फ कि कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करना मेरे हाथ में है, let me try again. So I think God has been kind on me and finally I got through the examination. You radiate such positive energy all the time and you're always smiling. That is difficult to even imagine that you had such a low point in your life at any point. So you are really an example for all those who want to go into UPSC and who are facing failure. They can really learn from you. We generally end our interview with a question that what are your tips for the people who want to join UPSC? But we'll just twist the question a little bit. What are your tips for people who cannot qualify UPSC in first attempt? How should they deal with it? How should they react to it? And how should they prepare for their life ahead of that? Well, obviously, जो भी एस्पिरेंट्स मुझे सुन रहे हैं उनको यही लगेगा कि नहीं हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, हमें बस आप टिप्स बता दो कि कैसे एग्जाम निकल सकता है. तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी कि इनफैक्ट मैं भी जब एग्जाम दे रही थी तो मेरे भी दिमाग में एक प्लान बी था कि मुझे अगर ये नहीं होगा तो और क्या करना है. तो प्लीज हमेशा अपना एक प्लान बी रखना, कुछ गलत नहीं होता है, रखिए अपने साथ में वो.
बट अपने आप को कुछ साल दीजिए, कुछ टाइम दीजिए जिसमें आप डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई और चीज उसके साथ में नहीं कर रहे हो। आपका टोटल डिवोशन, टोटल डेडिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम की तरफ होना चाहिए। एंड दिस एग्जाम इज गोइंग टू टेस्ट योर पेशेंस फॉर श्योर। तो इसलिए बहुत सारा पेशेंस लेके बैठेगा और मोटिवेशन का डोज भी लेके बैठेगा। और बहुत सारी टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स दे जस्ट वेस्ट देयर टाइम इन सर्चिंग अराउंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी, कि वो क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी है, वो क्या जादू की छड़ी वाली रेसिपी है कि बस उसको हमने अडॉप्ट कर लिया तो हमारा एक ही अटेम्प्ट में निकल जाएगा। तो प्लीज वो सब चीजें ढूंढने में अपना टाइम मत वेस्ट करिए। एक सिंपल सी लिस्ट है, एनसीईआरटी की बुक्स है, वही लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है, सबको पता है ये लिस्ट ऑफ बुक्स। उस लिस्ट ऑफ बुक्स को ही प्लीज आप अच्छे से पढ़ लीजिए और एक ही किताब को प्लीज बार बार पढ़िए। हम लोग मोस्टली ये एक गलती करते हैं, मैंने भी वाली गलती करी है, इसलिए अपनी गलती से मैं आपको बता रही हूँ कि मार्केट में जाके मटेरियल मत खोजिए बहुत सारा कि एक ही टॉपिक पे मैं इससे भी पढ़ लूँ, उससे भी पढ़ लूँ, अरे उस दोस्त ने बताया है कि वो वाला मटेरियल अभी मार्केट में नया आया है। तो प्लीज इस हंट में मत रहा करिए। आप लोग जो एक सेट लिस्ट ऑफ बुक्स है, ऑलमोस्ट सभी टॉपर्स वही सारी लिस्ट ऑफ बुक्स बताते हैं, कोई भी एक लिस्ट पकड़ लीजिए, उसमें जो बुक्स मेंशन है उन्हीं को बार बार पढ़िए, उनमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। और आज तुम इतने अच्छे जमाने में रहते हैं, टेक्नोलॉजी के जमाने में, कि आपके कोई भी डाउट्स हैं आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हो। तो और कोई जरूरी नहीं है कि तैयारी के लिए अब दिल्ली आना बहुत जरूरी है, अब तो आप घर बैठे भी ये सारी तैयारी कर सकते हो। तो जो आपके पास है उसमें ही आप बेस्ट पॉसिबल तैयारी करिए। एंड आई एम वेरी श्योर आप अगर डिटर्मिनेशन और डिवोशन के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, आपका ये एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। We have last question for you from an audience. Who inspires you? Who is your inspiration? मैं कहना चाहूंगी कि मेरे लिए तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो ही सबसे बड़े इंस्पिरेशन हैं। मैंने अपनी मदर को हमेशा देखा है कि कैसे डेली एक्टिविटीज भी वो बहुत डेडिकेशन और बहुत, जिसे कहते हैं ना, लव एंड प्लेजर के साथ करती हैं। कि एक जो सिंपल एक्टिविटी भी है घर की, उसमें भी शी इंजॉयज इट। तो वो चीज मुझे हमेशा इंस्पायर करती है कि कैसे हम अपने रूटीन के कामों में भी इंजॉय कर सकते हैं। और अपने फादर से मैंने हमेशा सीखा है कि चाहे लाइफ में कैसा कैसा भी फेज आ जाए, बी लाइक अ फीनिक्स। शायद कुछ लोगों को फीनिक्स की स्टोरी पता होगी या कुछ लोगों को नहीं होगी, तो मैं बता दूंगी। इट्स अ फिक्शनल बर्ड, जिसे कहते हैं कि वो जल के अपनी राख में से फिर से निकल के बाहर आता है। तो he has always inspired me कि लाइफ में चाहे कितने भी फेलियर्स आ जाए, to just come out of those failures। तो मेरे पेरेंट्स ही मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। Thank you so much, ma'am, for your time. It was a pleasure talking to you and knowing so much about Indian Postal Service, which is somehow oblivious, which people are somehow oblivious of. Thank you for your time, ma'am. It was an honor to have you on our platform. Shweta, thank you so much. Rajiv ji, thank you so much. And I would like to thank Bureaucrats India for inviting me for this dialogue. Thank you so much. And सबसे बड़ा थैंक्स जाता है हमारी ऑडियंस को, और आगे भी जो लोग इसको देखेंगे उनको थैंक यू सो मच। We are concluding on a note of you have also inspired us, so we are concluding on the note of great inspiration which we have got from you. Thank you so much, Aarti ji, for being with us. Thank you so much. Thank you everyone who joined in. Thank you Rajiv ji, thank you Shweta. Yeah, we'll end this session now. Thank you.